राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और कारपोरेट उसको बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। कारपोरेट मीडिया भी उसका एक पार्ट है। तो मैं जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विकास वाजपेयी को आमंत्रित करूंगा कि वह सभा का संचालन और उसकी अध्यक्षता करने के लिए आए और हमारे बीच वक्ता के तौर पर विद्वान पत्रकार प्रेम शंकर झा, सिद्धार्थ वरदराजन, संतोष बल, शमसुल इस्लाम जी और संजय काट जी मौजूद हैं। आप सब लोग कृपया मंच पर पधारें। आज की सभा में आने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि आज के मौजू की जो गंभीरता है, जो संजीदगी है, उसे summed out of this situation. And we have very eminent speakers amidst us. They have stood up for the public cause very, very publicly. And when anyone stands up for a public cause very, very publicly, in today's situation, that is not a very simple or an easy thing to do. सभा की जहाँ जिस अपनी सुविधा के अनुरूप वो अंग्रेजी या हिंदी में अपनी बात रख सकते हैं। बगैर ज़्यादा वक्त लेते हुए मैं सबसे पहले प्रेम शंकर झा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात हमारे यहाँ in which a democracy that is being sought to be captured through the mechanism of hate, the terrifying direction in which it is taking our country. And I think nothing describes this more accurately than the furor that has arisen over the film The Kashmir Files. So I'm going to start by talking about the impression that the Kashmir Files tries to give to the people of India. And you know that in its first week, the greatest film that anyone has made in this country, in its entire history as a free country. It claims that the Kashmiri Pandits were driven out in 1990, not by the work of a handful of terrorists, but because of a general hate of the entire Kashmiri Muslim population who wanted them out. This is utterly and totally wrong. It is a grotesque lie that is designed to use hate as an instrument for building the Hindu Rashtra. So I'm also going to talk about the essential falsehood of the very concept of Hindu Rashtra. First, say about 300 people went there and they got trained and came back. By no means all of them became violent terrorists, but a very large number of them did. From that point on, and they were theoretically at least part of the JKNF, the armed wing of the JKNF. The second major cause of the insurgency was again something to do not with religion but with democracy. It was the rigging of the 1987 elections. Make sure that the People's Muslim United Conference was not win. As we know from the results afterwards, there was no chance in any of a snowball in hell of the National Muslim United Front winning anyway. But the local administration did not take any chances, and they fiddled the results. And one of the people whose results they fiddled was a man called Yusuf Shah, who gave a press conference the previous evening applauding Indian democracy because he had been elected, and he was told next
next morning that there had been a recount of the vote, and he had overnight asked by the other candidate, and he had lost by 35 votes. In his anger and his sense of shame that he had already spoken before, he went out agitated. He was put in jail for a little while, but he was released. He went to Pakistan. As election agents were the people who became the head of the armed militancy afterwards, Yasir Malik and so on. And that was the second cause. The third cause of the exodus and the full onset of insurgency in Kashmir in 1990, again, was a police firing on a large crowd of demonstrators in an area called Gaupadal, where the police, inexperienced to this, came at the procession from both sides of the road, from both ends of the road, and fired into them, leaving the people nowhere to go. By the militants' exaggerated claims, about 200 people were killed. The government says about 24, and I have information given to me by the JKN that it was actually probably 55 people who killed in that. That much more than us, those who rule, they are very fearful of people. They are trying to uproot every shred of syncretism. I mean, look what's happening in Karnataka. In Hindu festivals, Muslims have been participating since centuries, and they want to destroy that tradition. So, with these words, I would again thank Mr. Jha for addressing us. I would call upon Siddharth to say a few words. इतिहास और तारीख का पूरा एक लेसन बताते हुए प्रेमचंद जी ने जिस तरह से इसका आगाज़ किया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा हमारे डिस्कशन के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। और क्योंकि एक बहुत ही तफसील डिस्कशन वो कर चुके हैं कश्मीर फाइल्स पे और कश्मीर से जुड़े हुए तमाम जो सवालात हैं जिनका इस्तेमाल पूरी तरह से आज के दौर में किया जा रहा है नफरत फैलाने के लिए, मैं अपनी बातों को किसी और दिशा में ले जाना चाहूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा मेरे पास। ब्रॉडली स्पीकिंग, नफरत की सियासत और नफरत की सियासत में जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारे हैं, उनका रोल क्या है और उनका रोल हम कैसे समझें, उनसे हमारी उम्मीद क्या होनी चाहिए, क्योंकि फोकस जन हस्तक्षेप के साथियों ने ये फोकस दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नफरत का आज के पॉलिटिक्स में, और जाहिर है कि पॉलिटिक्स के साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो सवाल है, नफरत की पृष्ठभूमि या उसका रोल क्या है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने पहली दफा, और लाल किले से उन्होंने देश को संबोधित किया अगस्त 15 को। जाहिर है कि इस देश का एक बहुत ब्रॉड सेक्शन इस मेरी नजरों में इस में फंसा हुआ था कि मोदी साहब वाकई विकास में उनका इंटरेस्ट है और इंडिया में ग्रोथ डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक वो देंगे। तो उस भाषण में बहुत सारी चीजें कही गई और शायद ही उसी इल्यूजन को आगे और मजबूत करने के लिए मोदी साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नफरत की सियासत, मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कि बहुत नफरत वगैरह हो गया है और कम से कम 10 साल के लिए एक मॉरेटोरियम होना चाहिए नफरत की पॉलिटिक्स पे। अच्छा, सवाल तो
जहन में उठता है कि भाई लक्ष्य तो बड़ा अच्छा है कि नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, तो आखिरकार आपने इसमें टाइम लिमिट, इसमें एक्सपायरी डेट क्यों डाला? अगर हम उस चीज को इग्नोर करें, लेकिन वो सजेशन उनका बड़ा सही था, लेकिन वो सिर्फ अल्फाज तक रहे, उस पे ना मोदी साहब अमल कर पाए, ना ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनका कोई इरादा नहीं था कि इस बात को इंप्लीमेंट करें। अखलाक की हत्या हुई बीफ के मामले में, और वो शायद पहला ऐसा इंसिडेंट था। ऑलरेडी जो है बीफ के सवाल को लेके बीजेपी ने अपनी सियासत शुरू की, और 2014 से लेके आज तक 8 साल गुजर चुके हैं। अलग अलग बहानों को लेके, अलग अलग विषयों को खड़ा करके संघ परिवार का जो पूरा, या हिंदुत्व ग्रुप्स का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उन चीजों को बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सिस्टम को समझें। विश्लेषण ये है, हालांकि मोदी तो दिल्ली आए गुजरात के कत्लेआम के बाद, 2002 में जो कत्लेआम हुए, वो मोदी साहब का एक अटूट अंग है उनके पॉलिटिक्स का। वो तजुर्बा लेके दिल्ली आए। नफरत का इस्तेमाल आज के दौर में किस तरह से इसको किया जाएगा, मुझे लगता है कि सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की गई है। नफरत सिस्टम और सिस्टम, लार्ज स्केल हिंसा, बड़े तादाद में लोगों को कत्लेआम, जैसे दिल्ली में हुआ कांग्रेस के देखरेख में, या 2002 में हुआ गुजरात में, और भी कई मिसाल हैं इंडिया में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एजेंडा मोदी साहब आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से शायद इस चीज को समझ चुके हैं कि उसकी एक बड़ी लिमिटेड यूटिलिटी है। आप एक विशाल कत्लेआम को रचने देते हैं तो उसके पॉलिटिकल, सोशल, डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस आसानी से काबू में नहीं आते। याद कीजिए कि 2002 के 2 साल बाद बीजेपी की सरकार खुद दिल्ली में, मतलब कि वाजपेयी जी की जो सरकार थी, वो हार गई चुनाव, और उसकी कहीं ना कहीं मतलब किसानों में आक्रोश, आर्थिक मंदी, ये तमाम ये फैक्टर्स थे। लेकिन एक फैक्टर कहीं ना कहीं ये भी था कि इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवाना। गुजरात में भले ही मोदी साहब इलेक्शंस 2002 के दिसंबर के इलेक्शन जीत आसानी से जीते, लेकिन ऑल इंडिया लेवल में कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास सेंसिबिलिटी है, वो इस चीज को शायद बिना मानना है वो पसंद नहीं किया। और आज के दौर में मुझे लगता है कि उस स्ट्रेटेजी, द यूज ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड द यूज ऑफ कम्युनलिज्म, एक मॉडिफाइड तरीके से वो प्रोजेक्ट आज हमारे आंखों के सामने इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके क्या पहलू हैं? हिंसा को एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड, रैंडम तरीके से इस्तेमाल करना। असर जो आपको मिलेगा वही है। अगर आपका असर है समाज में नफरत फैलाना, एक दूसरे के प्रति शक और शुबा पैदा करना, मुसलमान के दिल में डर पैदा करना, तो एक तरीका है कि आप किसी शहर में या किसी सूबे में या किसी प्रांत में मैसेकर कराएं। दूसरा तरीका है कि आप वायलेंस का जो इकोसिस्टम है, इस कदर आप इसको इनकरेज करें कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में, अलग अलग, न जाने किस वक्त में, न जाने किस चीज को बहाना लेके हिंसा जो है, छुटपुट हिंसा कभी भी कहीं भी भड़क उठ सकती है। कोई बहुत बड़ा दंगा नहीं हुआ, बलवा नहीं हुआ। सबसे पहले तो
ऑफिशियल आंकड़े उस चीज को खारिज करते हैं। कम्युनल इंसिडेंट्स पिछले 2-3 साल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बढ़ चुके हैं, लेकिन ये छुटपुट इंसिडेंट्स हैं और ये नया सिस्टम है इन लोगों का, डाउट फैलाने के लिए, फियर फैलाने के लिए। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि भाई पुराने जमाने वाला जो राइट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि उसका वक्त भी आए, लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि ये प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी है और हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक सोची समझी रणनीति के बेसिस पे इरेजर और मुस्लिम्स को एक पॉलिसी गोल की शक्ल में आगे बढ़ाया जा रहा है कि इससे पहले तो कहीं हिंसा हुई, हिंसा में सियासतदान इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले भी उसमें मुलव्विस थे, लेकिन ये हर कोई मानता था कि ये इलीगल एक्टिविटी है। और जब आप मोदी जी से कहते हैं कि भाई आपका जवाब क्या है, सबसे पहले तो वो पानी पी के उठ जाते हैं, इंटरव्यू नहीं देते। लेकिन जब उनसे या बीजेपी वालों से पूछा जाता है तो कहते नहीं नहीं, जो हुआ गलत हुआ और इसकी जांच हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, पुलिस अपना काम कर रही है। मतलब कि जो एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज जो पहले जमाने में फॉरवर्ड पुश किए जाते थे, उसकी कमजोरी ये थी कि भाई दे रिमेन इलीगल एक्ट्स दैट यू कैन नॉट जस्टिफाई बाय पॉइंटिंग टू एनी लॉ, बाय पॉइंटिंग टू एनी सिस्टम। ये अलग बात है कि इंप्यूनिटी, आपके गैर कानूनी हरकतों से आपको किसी चीज का डर, लीगल डर कभी नहीं होगा, आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो ये है कि आप एक कानूनी जामा पहना रहे हैं, लेकिन आपका मकसद वही है। सो मोदी पार्ट 1 में अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग प्रदेशों में जो सबसे पहले तो काउ स्लॉटर को लेके कानून को सख्त करने की जो मुहिम अलग अलग स्टेट्स में चली, उसके बाद अब इन्होंने लव जिहाद का हवा उठा दिया है। और हंसी आती है, मतलब कि आरक्षण जैसे गंभीर सवाल को लेके जब मामला कचहरी में जाता है तो ऑफ कोर्स इन तमाम केसेस की हिस्ट्री अलग है, लेकिन कोर्ट एक बहुत रीजनेबल तरीके से सरकार से कहती है कि भाई अगर आप, जैसे तमिलनाडु में हुआ सुप्रीम कोर्ट में परसों, कि अगर आप वलियार समुदाय को आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं तो आप हमको आंकड़े दिखाइए कि भाई कमजोरी वलियार कम्युनिटी जो है वो किस हद तक कमजोर है, अलग अलग जो सरकारी इदारे हैं उनमें उनकी पोजीशन, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपना केस बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आई वुड से कि भाई जो लव जिहाद वाला जो कानून है, कोई डेटा नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं। जिस चीज की शुरुआत किसी शायद आरएसएस या उनके मैगजीन्स में इस चीज को प्रोपेगेंडा के शक्ल में आगे रखा गया, फिर बड़े चैनलों ने उस चीज को उठाया और अब जो है उसको कानूनी जामा पहनाया गया है। कोई नहीं पूछता एक बुनियादी सवाल कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने आप को, जो उनका हक है, वहां पे कानून क्यों नहीं बनता कि भाई सबसे पहले डीएम को सेटिस्फाई करें कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली या किसी ने उसको रिश्वत देने की कोशिश नहीं की या कोई और इंड्यूसमेंट नहीं था। किसी भी इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के बिलीफ्स होते हैं ना। रिलीजन इज वन एस्पेक्ट,
तो कोई मतलब हम सब लोग रिलीजन के प्रति अपने अपने व्यूज हैं, अपने बिलीफ्स हैं, पॉलिटिक्स के व्यूज हैं। आप धर्म बदलने की बात करें तो डीएम का ठप्पा चाहिए, क्यों? लेकिन रिलीजन को ये अहमियत देके और फिर एक डाउट क्रिएट करके कि भाई कन्वर्जन का एजेंडा है, तो अब एक पुलिस को एक हथियार मिल गया है, तो लव जिहाद का जो है कानून को आगे बढ़ाया गया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे लैंड जिहाद की बात शुरू की कि भाई मुसलमान जो है जमीन खरीद रहे। जब हमने आरटीआई किया, हमारे रिपोर्टर ने आरटीआई सवाल पूछा उनसे कि भाई आपको जरा डेटा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा डेटा तो है ही नहीं, हम लोग कलेक्ट भी नहीं करते। तो अगर सरकार के पास डेटा नहीं है, अगर सरकार कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहां के मुख्यमंत्री या बड़े बड़े मंत्री कैसे बोल रहे हैं? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आप अलग अलग ट्रायल बलून्स फेंकते रहते हैं, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं। ट्रिपल तलाक, मुझे आज तक बात समझ नहीं आती कि भाई अगर कोई हिंदू शख्स या कोई क्रिश्चियन शख्स अपने बीवी को अबैंडन करता है इलीगल तरीके से, वो इलीगल ही हुआ ना। मतलब कि या तो आप कायदे से किसी से तलाक ले लीजिए, अगर आप क्रिश्चियन है, हिंदू है, आप कोर्ट के चले जाइए, एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। अगर आप घर से उनको भगा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो बेचारी महिला आप पे सिविल केस कर सकती है, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आपका नहीं है। जो प्रशासन देता है वो बड़ा मुझे फनी लगा। कहते हैं कि मंदिर की सफाई में ये काम आएगा। भाई आज है कोई पंडित जो कहेगा कि भाई मैं मंदिर को तभी साफ रख सकता हूं अगर मीट बिकना बंद हो जाए? मतलब मीट बिकना और मंदिर की सफाई से क्या लेना देना? शायद ये अच्छी बात है कि अभी भी योगी आदित्यनाथ खुल के नहीं बोल सकते कि मैं मीट की दुकान इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदू, या मेरी परिभाषा, मतलब हिंदू मेरी परिभाषा से, क्योंकि इस ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन वो अपनी परिभाषा के बेसिस पे जो हिंदू है उसकी प्राथमिकता, उसके बिलीफ सिस्टम, उसके प्रेफरेंसेस की प्राथमिकता हम लोग ऑफिशियली कर रहे हैं। कर तो वही रहे, लेकिन धीरे धीरे जो है इस चीज को ओन अप किया जाएगा। आज तो कहा कि भाई मंदिर की सफाई के लिए हमने मीट बंद कर दिया, लेकिन हो सकता है कि अगले साल जब नवरात्रि या कोई और ऐसा मौका होगा तो ये और खुल के बोलेंगे भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे लगता है कि जो नफरत की जो पॉलिटिक्स है ये क्या शक्ल ले रही है आज, और हमको किसी भी डाउट में नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि कोई बहुत बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ या एक बहुत बड़े पैमाने पे आयोजित नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि इतना खतरा नहीं है। ये जो यूबिक्विटस ऑफ वायलेंस की वायलेंस कहीं पे किसी लेवल पे किसी भी कारण से किसी को भी निशाना बना सकता है, और दूसरा कि जिस चीज को एक इलीगल तरीके से किया जा रहा था 5, 10, 15 साल पहले, उसी चीज को अब एक लीगल, और जो खतरा है वो इसी में कि आप इसको लीगल करार कर रहे हैं और कोर्ट भी इस चीज को कैंसिल करने से कतरा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे जो मीटिंग्स हैं, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। जिक्र किया गया और इस बात से मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि कॉर्पोरेटाइजेशन, दरअसल में कॉर्पोरेट मीडिया तो है ही बिल्कुल इंडिया में, उनका रोल ठीक नहीं है। उनका रोल तो इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लोग सक्षम है, पूरी तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन समस्या ये है समस्या सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन और मीडिया का नहीं। समस्या मेरी नजर, क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया तो आपको यूएसए में भी मिलता है, लेकिन यूएसए में जो कॉर्पोरेट मीडिया है उनका रुख और हिंदुस्तान में जो कॉर्पोरेट मीडिया है इनका रुख, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आ सकता है।
और शायद इसकी वजह यह है कि वहां पे जो संवैधानिक या जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं वो एक तरह से स्टेबलाइज्ड हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के जो संपादक हैं या CNN के जो मालिक हैं वो कभी इस डर में नहीं रहेंगे कि भाई FBI या CBI या ED मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा या कोई झूठा मुकदमा जो है मुझ पे थोपा जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे किया जाता है इन सरकारी इंस्टीट्यूशंस के मिसयूज की वजह से। इसलिए शायद 2 हफ्ते पहले हम लोग 15-20 जो हम लोग पत्रकार हैं, शायद हरतोष जी भी उसमें थे, प्रेम जी सब थे, हमने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में इन तमाम ये सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपने जो लीगली मैंडेटेड रोल है इस रोल से ये लोग हट चुके हैं। और यही वजह है कि नफरत की सियासत और पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस ये बहुत तेजी से हमारे मुल्क में बढ़ रहा है और जरूरत यह है कि हर कोई अपनी आवाज उठाए और हम कहें कि भाई ये सिचुएशन and the application of responsibility by these institutions is not acceptable. So thank you very much. To us, why are we failing both in our analysis and in our ability to actually deal with what is happening? Why is that the case? So I want to provide some sort of a framework through which I see these issues. And I want to begin with the victory of Adityanath in Uttar Pradesh. I was there briefly in Banaras. I spoke to some friends. I met a lot of people from Uttar Pradesh. I can tell you for sure that I was not in the least surprised. Bahujan core, which includes Dalits, it includes the lower OBC castes, the artisanal castes. Then you have the SP. Expand its base. It did not become inclusive. It did not include the very people the BSP and DSP was bringing to power. The upper caste moves en bloc to the BJP. That en bloc movement has significant consequences. What are the consequences? It's not just that number, which is about 15%, which is substantial. That becomes a larger vote bank than the so-called Muslim vote bank that is against them. It also means, look at the difference. In 2014, when Modi goes to the elections, he raises more money than the Congress, despite the fact that the Congress has been in power for 10 years. Today, 90% of all funding is going to the BJP. The combined opposition is getting 10%. Where does this funding come from? It comes from the Banyas. You want to talk corporate in this country, compare it to the America, bullshit. There is one caste that controls money in this country. That caste controls corporate India. It is the Banya caste. It is fundamentally behind the BJP. The media, we want to see how Modi controls the media. Unfortunately, if you go around to the vast majority of Hindi newsrooms, I don't think it is being controlled. There is an assertive inclusiveness of belonging to the Modi project that comes from the upper caste domination of these newsrooms. These people are doing what they are doing because they want to do this. This language of hate is being spewed from these newsrooms not because somebody is forcing them to do it. Yes, there is a question of ownership, it's a question of salaries, but most of these people want to be doing what they are doing. So you have this upper caste consolidation of both the Brahmin and the Banya, that is the intellectual and the monetary base behind the BJP. What we see here today in this room, all of us, we belong to the rump of the upper caste liberal project, did not desert the left and go over to the BJP. But this is a very small and insignificant minority of the upper caste collective in this country. And it's only a rump of that collective that stays on the left and talks about this discourse. What does this upper caste consolidation consist of? What Siddharth spoke about, the hatred directed against Muslims. I want to claim that it is part of a far more thought out, significant project than merely a question of hatred. What we are witnessing today, a real, to use the word that Prem Shankar, in the real dharmic sense, the construction of a new untouchable class. In the same way that the Brahmin could not without
the existence of the untouchable or the pariah. There can be no Hindu Rashtra without an untouchable Muslim lying within the country. At the turn of the last month, I was asked, there was a conference that would you speak at the genocide conference? And I said, no, I won't, because I don't agree with the premise. I don't think what is being threatened is the genocide of Muslims. What is being threatened is the permanent untouchability, second-class citizenship of Muslims. In that, the lynchings, in that, the economic boycott of Muslims that is happening. It is literally driving a community to the outskirts of the village where they can participate only in certain limited designated activities. They cannot be allowed to operate completely in society. They will operate only on the fixed grounds that this Hindu Rashtra will set for them. And that will be designated completely in the way an untouchable's role was designated in traditional society. Who are the dissenters of this project? If you look around these elections, 5 elections happened. Only one, the BJP, was not even in the running. Out of the 117 seats in Punjab, it won 3. And it's never going to do much better in Punjab on its own. We know that. It lost the West Bengal elections. But if you look at the result closely, and I was in West Bengal when this happened. West Bengal has a Muslim population of about 30%. The BJP actually led the TMC among the non-Muslim voters. If you look at the vote percentages in Bengal and look at it carefully, this is what happened in West Bengal. Without that 30% vote, you would not have seen the defeat of the BJP in Bengal. The BJP cannot win in Tamil Nadu because Tamil Nadu is probably the most interesting case, which is largely a Hindu majority state, but with a cultural identity which is so strongly defined. Kerala, demographically, they cannot go there. So you look at the periphery. What is this periphery? Kashmir, Punjab, Bengal, Tamil Nadu, Kerala. And what is the core? The core is what I would call an Indo-European language-speaking Hindu core. What we are seeing is that we have a democratic mandate, yes, but what is this democratic mandate doing? This democratic mandate is actually creating the project of an empire that is ruled from this core, where the peripheries are being coerced into the participation of a project that they did not sign up for. This was not the project of 1947 that we started off with. So what does that mean? If we accept this reality, and it is a reality, I see no doubt in it, the numbers are very much with the BJP. The numbers that are growing the fastest are in this core. As compared to Tamil Nadu or as compared to the south, the population of Uttar Pradesh is the population that is growing the fastest. The demographic problem in this country is not the demographic problem of the growth of the Muslim population. It is the demographic problem of the growth of the Uttar Pradesh population. And if we don't face up to that fact, we are not going to deal with this reality. So this project of empire can only be challenged to the degree that those who lie outside its core and those who are dissenters within the core, first of all the Muslims, who are the largest possible dissenters, understand that we must find ways in this. Parties like the Aam Aadmi Party are not really a challenge to the BJP. You look at what they operate out of, what their configuration is, who their leadership is. It's a Baniya party. If you examine it, look at your Rajya Sabha choices, they can never be the challenge to what is on the plate here. The Congress is totally without ideas. But if the challenge has to come, it has to be a challenge to this idea of empire that the BJP has thrown before us. That means we have to acknowledge that in the first 60, 70 years of this republic, things that we are proud of, the values in the constitution, there were huge failures. That failure is reflected in this room. If I write down the names of the people on the stage and people sitting here, you will see how much it lacks inclusivity of the reality of this country. And this is true of every liberal project of the left that exists anywhere in the country. This failure to include and broad-base itself, to include the lower OBCs, to include the Dalits, to include a large part of the farming communities across the country,
is a failure today the BJP exploits and it rubs it in our faces. Who is the one minister they have chosen? ये मुसलमानों के खिलाफ जो एजेंडा है और उनको मुसलमानों को एक नव शूद्र बनाकर, एक न्यू शूद्र बनाकर चाहिए, ताकि उनके अपने जो शूद्र, जो ट्रेडिशनल शूद्र है, उनको जो विद्रोह हो रहा है, उनको कहें कि तुम्हें भी लात मारने के लिए आगे एक है। ये मैं लगभग 30-35 साल से इस पर काम करते हुए मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। देखिए, एक सवाल जो कभी भी नहीं उठाया जाता, ना कभी बात की जाती है, वो ये है कि मुसलमान कहीं पर किसी कंपटीशन में नहीं है। किसी कंपटीशन में, मैं जब पढ़ाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो रिजर्वेशन पर बहस शुरू होती थी और मुसलमानों के अपीजमेंट पर बात शुरू होती थी, तो मैं अपनी क्लास के जो बच्चे थे, बच्चियां थी, उनको लेकर मैं रेलवे स्टेशन आ जाता था। और उस जमाने में आपको याद होगा, रेलवे स्टेशन पर बहुत एक आदमकद लंबा वो सूची लगती थी लिस्ट की ना, वो रिजर्वेशन की, वो बहुत लंबी नीचे जमीन तक आती थी। तो मैं कहता था कि हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एसी जो है, इसमें आप नाम जरा गिन लीजिए, नाम जरा पढ़ लीजिए और उसमें मुसलमानों का नाम कर दीजिए, क्योंकि उनका तो अपीसमेंट हो रहा है, वो 14% है, लेकिन वो 50% खा पी रहे हैं। और उसके बाद जातियों का भी नाम से पता लग जाता है, शर्मा, गुप्ता, ये सारे, और उसमें जो नॉन ऊंची जाति के लोग हैं वो कितने हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी बार ये होता था कि हम बड़ी मार्केट में आ जाते थे या बड़े किसी मिडिल क्लास बस्ती में आ जाते थे, और मैं उनसे कहता था कि यहाँ जरा सा हम लोग एक सर्वे करते हैं कि कितने मुसलमानों के घर हैं, कितने दलितों के घर हैं। तो पता लगता था कि वो जो अभी हम जो बहस कर रहे थे कि रिजर्वेशन ने सब सत्यानाश कर दिया और उनकी वो बहुत उसकी वजह से खराब हुआ है, तो और मुसलमानों का अपीसमेंट है, तो वो नीचे जमीन पर गिर जाता था। लेकिन वो क्योंकि बहस आगे इसलिए नहीं चल पाती थी कि फिर वो अलग है और मैं अलग, मेरा क्लास के बाद का रिश्ता उनसे खत्म हो जाता था। लेकिन आज एक बात जो बहुत अहम निकल कर आ रही है कि इस सब के बावजूद मुसलमानों के साथ नफरत क्यों है, और मैं आपको ये स्वामी विवेकानंद के जरिए आप बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अब मेरे दिमाग की जो बात है, जो रेंगती रहती है, वो आपके सामने रखूंगा। अम्बेडकर जी ने कहा कि हमारी यहाँ इक्वालिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं लगभग आई एम कोटिंग स्वामी जी, हमारे यहाँ कोई इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं है, ये हमने इस्लाम से सीखा। और विवेकानंद वही है जो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईसाई और एक मुसलमान की संख्या बढ़ते हैं तो एक एंटी नेशनल की संख्या बढ़ती है, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन वो इस सच को मान रहे हैं कि हमारे यहाँ बराबरी का कंसेप्ट नहीं है। देन ही केम आउट विद द फॉर्मूला दैट इस्लाम्स बॉडी एंड Atma of Vedanta lies the salvation of India. ये क्या कहा, ये मुसलमानों के गले की फांसी बन गया ये विवेकानंद जी की ये सोच, और जिसको आरएसएस वाले भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुसलमानों ने, जो आज मुसलमान हैं, ये सारे के सारे 99% शुद्ध बैकग्राउंड से आते हैं, उसी स्टॉक से आते हैं। मैं अपने परिवार के बारे में भी जानता हूं कि हम किस दलित परिवार से, हमारा परिवार कभी 200-250 साल पहले मुसलमान हुआ था, और वो उन्होंने कभी इतिहास में अपना धर्म बदलकर सामाजिक बराबरी हासिल करने की कोशिश की। इसको ब्राह्मणिकल लीडरशिप ऑफ आरएसएस को कभी भी उनके गले से नहीं उतर सकता, और उनको ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि वो आगे आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, और भाई साहब ने जो कहा तो जिन्हें कि उनको एक, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी हो गई, एक टैक्टिकल, उनको क्या मुसलमान एक जो जिसको कोई अधिकार नहीं होंगे, जो सामान नहीं बेच पाएगा, जो नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरएसएस का अध्यक्ष, आरएसएस का मुखिया कह रहा है कि मुसलमान स्टेट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। वो सरकारी नौकरियों में उनकी स्थिति लगभग 0 के बराबर होती चली जा रही है। कंट्रेक्चुअल जॉब से वो पूरे बाहर आ जा रहे हैं। अगर कहीं पर रुक भी रहे तो इस वजह से क्योंकि उनको टायर पंक्चर करने वाला दूसरा नहीं मिलता है फिलहाल। और जिस शहर में मैं रहता हूँ वहां सफाई कर्मचारी हरियाणा का नहीं होता है, तो वो सारे बंगाली मुसलमान औरतें और जो है वहां की सड़कें साफ कर रहे हैं, वो मेहतर और सफाई कर्मचारी वहां बने हुए हैं। तो अगर हम इसको नहीं समझेंगे कि हिंदुत्व का असली निशाना मुसलमान तो है, लेकिन मुसलमान इसलिए नहीं है, उनका असली निशाना
हिंदू धर्म के अंदर जो भी बराबरी की लड़ाई लड़ी गई, जो भी हक हासिल किए गए, उसको वो सब खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अब रेलवे में सफर करते हैं और अब तो एयरपोर्ट में भी गीता प्रेस की किताबें मिलने लगी हैं कि गीता प्रेस की किताबें हैं हिंदू धर्म ADZ, और ये वो सवाल है जिसको हमने हिंदुत्ववाद के जो झंडा उठाए हुए हैं उससे पूछना चाहिए कि आपका मुसलमानों को छोड़ो भाई, वो तो खत्म हो जाएंगे, उनको मार देंगे, उनको सब आप कुछ भी कर दो, उनको आप किसी भी तरीके से गैस चैम्बर्स में डाल दो, कर दो, लेकिन आपका हिंदुओं के बारे में क्या एजेंडा है, वो आमतौर पर हम नहीं पूछते हैं। हम RSS को, और जो माफ कीजिएगा, जो पार्लियामेंट्री लेफ्ट रहा, उसकी बहुत जिम्मेदारी रही कि उन्होंने कि RSS जो है मुसलमानों का दुश्मन है, ईसाइयों का दुश्मन है। वैसे इस देश के लिए वो कोई खास वो नहीं है, वो थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे, उनका सेकुलराइजेशन हो जाएगा तो सारा मसला हल हो जाएगा। हमने पूछना चाहिए RSS के तुम्हारा क्या है। तो मैं गीता प्रेस की जो किताबें जो 5-5 लाख छपती है एक बार में, औरत का पति मारपीट करे तो क्या करना चाहिए, उसको तो यही समझना चाहिए कि मेरे पिछले जन्मों का बदला था, अभी होता है, और उसको वो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये RSS की किताबों की दुकानों पर किताबें बिकती हैं, और हिंदुस्तान की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें ये मिलती नहीं है। तो ये सवाल पूछना पड़ेगा, और ये सवाल पाकिस्तान के मुसलमानों ने, गरीब मुसलमानों ने, बंगाली मुसलमानों ने पूछा पाकिस्तान के, जो इस्लाम के नाम पर जो वहां गुंडागर्दी कर रहे थे, जो इस्लाम के नाम पर जो वहां तानाशाही स्थापित हुए थे, मिलिट्री राज था, वो पाकिस्तानी कब पूछ सके, हम पता नहीं कब पूछेंगे उनसे कि तुम बताओ तुम्हारा हिंदुओं के बारे में क्या विचार है, तुम्हारा हिंदू औरत के बारे में क्या विचार है। 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। They came out with an editorial in the organizer and they said हमको मनुस्मृति चाहिए, we reject this। और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति हिंदू औरत, मनुस्मृति मुसलमान औरत के खिलाफ नहीं है, सिख औरत के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति मुसलमान दलितों के खिलाफ नहीं है, मुसलमान गरीबों के खिलाफ नहीं है, वो हिंदू शूद्रों के खिलाफ है, और कहता है कि उनको इंसान के बराबर का उनको दर्जा नहीं है, औरतों को इंसान के बराबर का उनको दर्जा नहीं है। तो अगर ये असल में ये सवाल गांधी जी की हत्या के बाद सारे उठ जाने चाहिए थे, RSS का चरित्र क्या है, हिंदुत्ववादी हिंदुओं के दुश्मन है, वो सवाल उठे नहीं, और उसको फिर हमने किस तरह से चुनाव के उसमें करके वो शामिल किया। लेकिन मैं आखिरी बात, जो 2 मिनट मुझे इजाजत दें डॉक्टर विकास जी, कि मैं मेरे साथ अभी इंदौर में जो हुआ उस पर मैं जरा सा 2 मिनट आपको बताना चाहता हूं कि निशान के साथी के तौर पर मैं 1971 से काकोरी के जो शहीद है अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह, इनकी शहादत से निशान, जो मेरे जिस नुक्कड़ नाटक संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो हम लोग एक कैंपेन शुरू करते हैं भगत सिंह के शहादत दिवस के, उसके बाद में 10-15 दिन तक चलता है। तो वो कई साल से नहीं हो पाया था, मतलब कभी जिंदगी में 1971 के बाद इसमें ये कोविड की वजह से ब्रेक आया, कभी भी नहीं आया था। तो इस बार ये था कि मध्य प्रदेश में साथियों ने बुलाया था कि आप आइए, निशान तो नहीं आ सकता है तो आप आइए और भगत सिंह पर बात करेंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह पर बात करेंगे, और आप गाने गाएंगे। तो लखनऊ में, सॉरी अहमदाबाद में, सॉरी क्या हो रहा है, नहीं, भोपाल में 2 दिन का बड़ा यानी हंगामे खेज प्रोग्राम थे, 10 से ज्यादा मीटिंग, रात को 11-12 बजे तक बैठे हैं, और हो रहा है। और इसमें क्या था कि निशान ये हिंदुत्व के असेंडेंसी से पहले बहुत हम बात करते थे, लाल झंडे, इनकलाब लाएंगे, भगत सिंह का जो है कि हमने जिथे मनुष्य का शोषण ना करे वो हम करेंगे। लेकिन इस बार हमने हिंदुत्व को राइज और जो धर्म के नाम पर बांटने का है। तो मैंने ये सोचा था कि हम जो हमारी विरासत है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की एकता की, उसको बात करेंगे। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 1857 से मैं शुरू करता हूं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं जो उस जमाने के दस्तावेजों को आधार पर कि 1857 में मुस्लिम्स were 20%, but so far as martyrdom was concerned, they put in 40% share. और वो 7 वॉल्यूम में जो ICHR ने छापे हैं, जिसको मोदी साहब की सरकार ने उसको रुकवा दिया, इसको बंद करा दिया कि इसको आप सर्कुलेट नहीं करेंगे। और यानी उसमें क्या क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि
थाना भवन एक जगह है, थाना भवन में 14 औरतें होती हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख औरतें, और सब जातियों की। दिल्ली के अंदर भी जो राज बनता है और उसमें जो तराना गाया जाता है, तराना जो 13 मई 1857 को लिखा जाता है अजीमुल खां के जरिए कि हम हिंदू मुसलमान सिख भाई भाई, और ये कहां से अंग्रेज यहां पर आए। और मैंने एक और चीज जो चुना था कि मैं अपने दर्शकों के साथ, सुनने वालों से, ये हजरत मोहानी साहब की कृष्ण जी पर ये नज़म मैं सुनाता था उनको, और ये मैंने इतनी बार सुनाई है, इतनी बार सुनाई, 100 से ज्यादा मुझे सुनानी पड़ी। आप भी सुन लीजिए। हजरत मोहानी साहब गए बरसाना और नंदगांव, और उनकी जो नज़म है उर्दू का, इससे बेहतरीन मैंने हिंदी अंग्रेजी में भी कृष्ण को पढ़ा है, लेकिन इससे खूबसूरत नज़म नहीं लिखी गई। मैं मीनिंग आपको समझा दूंगा, पहले मैं पढ़ रहा हूं आपको। मथुरा का नगर है आशिकी का, समझते हैं? तो दम भरती है आरजू उसी का। मौलाना हसरत मोहानी, दाढ़ी वाले, ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले भारत को पूरी आजादी दी जाए उसका प्रस्ताव रखा था अहमदाबाद में, और प्रस्ताव पास होने जा रहा था। गांधी जी अपना खाना छोड़कर आया और उनको रद्द कराया कि नहीं, ये प्रस्ताव भाई पास नहीं करो। और उसमें अशफाकुल्लाह भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे उस सभा में इनके साथ। हर जर्रा सरजमीन गोकुल दावा है जमाल दिलबरी का। जो हर जर्रा है, जो उसका कण है, वो बहुत खूबसूरती का एक दावा है। बरसाना और नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयाते जाविदा था हर नगमा कृष्ण की बांसुरी का। जिंदगी आपको बढ़ा देने वाला वो जो गाते थे वो था। और आखिरी 2 लाइनें, वो नूरे सियादा की हसरत सर चश्मा फरोगे आगही का। यानी इतना खूबसूरत उन्होंने एक सिंबल इस्तेमाल किया है कि श्याम थे ना कृष्ण जी, तो काले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो काला नूर था, एक देवीय रोशनी थी काली, और वो सारी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला था। उसके बाद मैं सुनाता था अल्लामा इकबाल की इमामुल हिंद राम, यानी हम, और मैं ये बता, क्योंकि मध्य प्रदेश काफी भगवा हिंदुत्ववादी रास्ते पर जा चुका है, तो मैं उस ऑडियंस को लेकर, उसके बहुत नतीजे, बहुत झगड़े होते थे, लेकिन लोग ये कहते थे कि भाई ये तो मैंने इसको कोई फैब्रिकेट तो नहीं किया। तो ये करते हुए जब पहुंचे हम लोग वहां पहुंचे, हाँ एक काम और करता था कि मैं भगत सिंह की शहादत से संबंधित और राजगुरु सुखदेव की शहादत से संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो नई दिल्ली थाने में जो उनको बम फेंकने के बाद वो सब नौजवानों को बांटता चलता था। भगत सिंह के दस्तावेज हिंदी और उर्दू के अंदर वो खरीद कर उनको नौजवान साथियों को ले जाता था। तो ये सब चल रहा था। तो जो साथी इंदौर से लेने आए, उन्होंने कहा रात को जब पहुंचे 25 की रात को, 26 को वहां बड़ी सभा थी कि वो तो आपका बैन कर दिया गया, और वो शमसुल इस्लाम इस हालत में हो सकता है कि शमसुल इस्लाम उसमें नहीं रहेगा। तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे ये भी एक चीज समझ में आ गई कि उन्हें शमसुल इस्लाम से डर नहीं हो रहा है। उन्हें जो मैं हिंदू मुसलमानों की एकता और साजी शहादत और साजी कुर्बानियों की बात कर रहा हूं, उससे उनको डर लग रहा है। और लेकिन उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, वो इंदौर के अंदर 10 से ज्यादा सभाएं हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटे, और जो 2 बड़े कार्टन्स किताबों के गए थे वो लूट गए, जो तमाम थे। तो ये हिंदुत्व आगे क्या करेगा, और मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा उन्होंने किया है, इससे बहुत ज्यादा वो करेंगे। पर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये हिंदुत्व का चैलेंज क्या है, इसको समझ लें। ये मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, ये इस देश की जो हिंदू धर्म की परिभाषा जैसे ये विकसित हुआ है, ये उसके खिलाफ है, और वो हिंदुओं के खिलाफ है। और मुसलमानों को आप बचाने आए तो इस वजह से नहीं बचाने आए कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, इस वजह से बचाने आए कि मुसलमानों ने, इस देश के जो मुसलमान हैं, और उसको बेवकूफ हिंदुस्तान की जो मुसलमान लीडरशिप है वो बिल्कुल नहीं समझती है, वो बिल्कुल नहीं समझती है कि उनको मुसलमान उसकी कीमत चुका रहे हैं जो उन्होंने कभी बराबरी में बैठने का किया था। और मुस्लिम लीडरशिप किस काम में लगी है? मुस्लिम लीडरशिप लगी है इस काम में कि हिजाब इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है। इस्लाम और
ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। रूहानियत, अध्यात्म, कितना कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा। जरखेज समझते हैं ना, फर्टाइल करती है। कितना कदीम कितना पुराना और कितना नईम, कितना इनोवेटिव है। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। उसकी खाने यानी खदाने उगल नहीं, सोना हीरा पारा, उसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दौर से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। तो दोस्तों, ये गीत हमको याद रखना चाहिए और ये हमारी विरासत है। और अगर कुछ साथी आप ये चाहेंगे कि वो जो ऑर्डर उन्होंने निकाला था कि सभा नहीं होगी, वो मेरे पास है, अगर कुछ साथी उसको। इस संस्कृति के बारे में भी बात कर रहे हैं और इसलिए 2 मिनट लूंगा इस फिल्म के बारे में, कश्मीर फाइल्स की, क्योंकि इस फिल्म में क्या है और फिल्म के इर्द गिर्द क्या है, इसमें 2 शब्द बहुत आते हैं और वो है एक तो फैक्ट्स, तथ्य जिसे वो कहेंगे हिंदी में, और दूसरा है सत्य, द ट्रूथ, कश्मीर का सत्य। इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा है कि इस फिल्म को जरूर देखें क्योंकि इसमें कश्मीर का सत्य है। तो जो सत्य है वो किस चीज से आप बनाते हैं, और ये यहाँ पे लोग तो जानते ही हैं कि इसकी जो एल्केमी है उसमें आरएसएस की बहुत पुरानी मतलब एक्सपर्टीज है कि किस तरह आप कुछ तथ्यों को लेकर कोई तीसरा सत्य बना सकते हैं। तो फिल्म क्या करती है कि कुछ फैक्ट्स को लेकर एक और उसके साथ कुछ असत्य जोड़कर एक तीसरी कहानी बना सकती है, और वो तीसरी कहानी जो है वो बिल्कुल आज के इस डिस्कशन से जुड़ती है, बिकॉज दैट इज डायरेक्टेड एट generating absolutely toxic hatred for the Muslim। मतलब मैंने आज तक शायद कोई भी बॉलीवुड की फिल्म नहीं देखी होगी जिसमें उस तरह की वायलेंस जो है वो एक सो कॉल्ड बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स काइंड ऑफ स्टोरी के ऊपर थोपी नहीं हो। तो और वो कैसे हुआ कि ये ऐसी फिल्म है कि जिसमें ये सेंसर बोर्ड भी सहमत है, जिसमें कॉमर्स भी सहमत है, जिसमें 400 थिएटर्स में वो पहले दिन रिलीज होती है, जिसके पीछे बीजेपी और आरएसएस की पूरी ताकत लगती है। तो ये कोई छोटी मोटी प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, इसे हम बिल्कुल डिसमिस ना करें। हम ये ना समझें कि अरे देखो ये लोग तो पैसे कमा रहे हैं और यूट्यूब पे लगा दो। मुझे तो लगता है कि अगर आप इसको यूट्यूब पे लगाएंगे तो और भी खतरनाक होगी, क्योंकि आई एम नॉट मेकिंग अ केस फॉर सेंसरिंग द फिल्म, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दैट देयर इज समथिंग वेरी डायबॉलिक। बहुत शातिरता है इसमें, जिस तरह से ये फिल्म सिर्फ बनाई नहीं गई है लेकिन जिस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। और वो जो इसका लार्जर जो लक्ष्य है वो बहुत साफ है। इट इज टोटली कनेक्टेड कि भाई अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमान को तो आपने कुचल के रखा है, लेकिन अब उनको और कुचलने के लिए आपके हाथ में कुछ हथियार होने चाहिए ना। आप क्या दिखाएंगे? अब आप कहेंगे कि देखो उन्होंने कश्मीर में क्या किया, तो अब इनको अगर हम मारेंगे काटेंगे और मतलब दबाएंगे तो वो तो ठीक ही है ना एक तरीके से। So the rationale for the further dispossession, the further humiliation of the Indian Muslim is now being cooked in Kashmir. It's being done, and अभी हम कश्मीर में लोगों के साथ क्या बीत रही है उसको एक तरफ कर देते हैं क्योंकि आज वो मुद्दा नहीं है, लेकिन उनके सरों के ऊपर उनकी सरजमीन के ऊपर एक ऐसी मतलब पॉइजनस खिचड़ी पकाई जा रही है जो कि आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल यहां जरूर होगा।
लास्टली एक कुछ अगर हम कुछ ऑप्टिमिज्म देखना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि उसको हम क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट मीडिया में भी, खासकर प्रिंट में, टीवी को तो हम की बात ना करें, इस मुद्दे पर बहुत एग्जांपल्स मिले मुझे जहां के एनालिसिस वाज एक्चुअली क्वाइट गुड। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 10-1 साल में कश्मीर के बारे में लोगों ने थोड़ा बहुत एंगेज करने लगे, तो आई वुड से कि चाहे कि लगता है कि आंधी के बीच में आपको कोई पर्चा आपके हाथ आए और आप कहेंगे यार ये तो अच्छा पर्चा लिखा गया है, लेकिन आई ड्रॉ सम सस्टेनेंस from the fact that I have read at least a dozen very good analytical, factually based pieces putting out all the right questions. कि कितने कश्मीरी पंडित थे, कितने निकले, कब निकले, कितने मारे गए, कब मारे गए, किन्होंने मारा, इस तरह की जो है। तो I just want to end here by saying that for all kinds of reasons, देखिए जो आरएसएस ने जब से वो भारत माता का जो वो पोस्टर बनाया ना, जिसमें भारत माता का जो ताज था वो कश्मीर में पहुंच गया, तो वो ताज का वजन अब तक कश्मीरी ही, मतलब they were having to deal with the weight of that ताज। तो लेकिन अब क्या होने वाला है कि जो उसका जो जहर है, उसका जो असर है उस वजन का, वो धीरे धीरे हमारी तरफ भी आ रहा है और यहाँ से भी वहां जा रहा है। I think that I feel that it's a moment. This film is a moment to recognize the deep interconnections between so much of what the BJP and the RSS are planning for the years to come, and to help, जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ we don't only have to look at it symptomatically, but what is the disease, to actually make those connections and to arrive at a vision which is not as toxic and dark as they're being offered right now.